السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ برا نہ لگے تو چونکہ ادھر تو کچھ بچھایا نہیں گیا ہے، نیچے سے ٹھنڈک آپ کو محسوس ہوتی ہوگی، آپ کرسی ہی لے کر اور ادھر آ جائیں، جو جگہ خالی ہے وہیں کرسی لے کر آ جائیں تاکہ یہ سامنے مجمع پورا بھر جائے۔ جھگڑا نے ماحول کرسی اور لڑائی کا، کرسی کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ آپ حضرات کرسی لے کے ماشاءاللہ کرسی مت چھوڑیے، آپ کھا نہیں جا رہے کہ کرسی چھوڑیے۔ وہ بھی آ جائے، کرسی لے کے آ جائے بابو۔ ارے بات مان لو بابو، یہ دعا قدم نہ تو بہنیں تعلق میں شادی ہو جائے، چلا جائے ہنے آواز جلدی سے۔ اب بھائی اگر کوئی صاحب اگر کھانے سے محروم ہے تو بیچارے جا کر کھانا کھا لے، کھانا بھی بچا ہوا ہے اور الحمدللہ ان لوگوں نے بڑا محنت کیا، کھانے کا نظم بھی رکھا تھا۔ اشتہار میں تو نام تھا کہ کھانے کا نظم نہیں ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ یہاں کھانے کا بھی انتظام ہے۔ جو حضرات اگر کھانا نہ کھائے ہو وہ جا کر کھانا کھا لیں۔ آپ کھانا کھائیں وہ سحری کی نیت کر کے کھائیں، کیا ہے بھائی؟ حضرت مولانا مہدی زمان صاحب۔ الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالته من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في غبار المدينة الشفاء من كل دواء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آؤ جو جہاں ہو وہاں اگر سن رہے ہوں تو آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں، جس سے ہوتے ہیں دل و جاں معطر دفعتاً، آپ کے اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں، آپ کے اس زلف عنبر بار کی باتیں کریں، اور دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے والضحا، دل کو تابانی عطا کرتا ہے روئے والضحا، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں، مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار کی باتیں کریں، اور جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، آپ کے اس خوبصورت یار کی باتیں کریں، اور جس کو دیکھ کر بدل دے شیطان راستہ اپنا، جس کو دیکھ کر بدل دے شیطان راستہ اپنا، آؤ فاروق جرار کی باتیں کریں، آؤ اس فاروق جرار کی باتیں کریں، آئے محفل میں تو سرکار ڈھانپ لیں پگلی اپنی، آئے محفل میں تو ڈھانپ لیں سرکار پگلی اپنی، آؤ اس غنی و حیادار کی باتیں کریں، ارے آؤ نا، آؤ اس غنی حیادار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستوں سرکار کی باتیں کریں، آؤ میرے دوستوں جو چلے فرش پر پہنچے آہٹ عرش پر، جو چلے فرش پر پہنچے آہٹ عرش پر، آؤ اس حبشی بلا وفادار کی باتیں کریں، آؤ اس حبشی وفادار کی باتیں کریں،
جس دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بات اللہ کی اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دل میں ہو یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بات اللہ کی اگر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے۔ اس بار مدینے کا سفر ہو میرا، اس بار مدینے کا سفر ہو ہم سب کا، بس میرے لیے ایک ہی سال اچھا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ چاند بہت ہے حسی، اور چاند کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے، چاند کہتا ہے کہ محمد کا جمال اچھا ہے۔ سرتن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، نمازے کے تلاوت کا کمال اچھا ہے، نمازے کے تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ ابو بکر عمر حیدر و عثمان ہیں پیارے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان ہیں پیارے، یہ محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے، یہ محمد کا کمایا ہوا مال اچھا ہے۔ اور بات کرتا ہے تو پھیلے ہے ہر سو خوشبو، بات کرتا ہے تو پھیلے ہے ہر سو خوشبو، اس کا لہجہ ہے حسی اور مقال اچھا ہے، اس کا لہجہ ہے حسی اور مقال اچھا ہے۔ اللہ کے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے۔ اللہ کے سب نبی اچھے، خلیل اچھا، کلیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے، لیکن ان سب میں وہ مکے کا یتیم اچھا ہے۔ اور وہ بھی اچھے ہیں جو نہ چھو سے رہیں وابستہ، ان کے حجرے میں جو بھی مقیم اچھا ہے، ان کے حجرے میں ہے جو بھی مقیم اچھا ہے۔ ماشاءاللہ آج کا یہ بہت خوبصورت پروگرام کامیابی کی طرف گامزن ہے، اور اسٹیج پر خوبصورت علماء کرام کی تشریف آوری اور سامعین بھی ماشاءاللہ بہت بغور سماعت فرما رہے ہیں۔ اور ادھر سے زیادہ مجاہدہ آپ لوگوں کا ہے، میری ماں اور بہنوں کا ہے، کہ جو کھلے آسمان کے نیچے بالکل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں سننے آئی ہیں، اور آپ نیچے جو بیٹھے ہیں یہ فرش بھی کچھ بھیگا سا نظر آ رہا ہے، آپ اس فرش پر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مرتبے کو عرش پر چمکائے گا انشاءاللہ۔ میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے حوالے سے ایک چھوٹا سا نعت سناؤں، اور کچھ لوگوں ہمارے بہلی کے ساتھی آئے ہیں، دھواں ٹیکر کے حافظ راشد صاحب کے بہت سارے ساتھی، ان کے بھائی استخار بھائی اور معراج بھائی، بہت سارے لوگ آئے ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں، خصوصاً بیسن پٹی کے نوجوانوں کا غور سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ہم کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، یہ آج دارو دیوار نبی جی، اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ اے میری ماں بہنیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بچوں کو کھلاتی ہیں، تو آپ بہت زیادہ اپنے اندر علم نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو غلط تربیت کر دیتی ہیں۔ صحابہ کی واقعات کو پڑھیے، صحابہ کرام کے قصوں کو پڑھیے، انبیاء کرام کے واقعات کو پڑھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھیے، تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے۔ دیکھیے ماشاءاللہ جناب بھائی رضوان صاحب کے بچی کی طرف سے ایک پائل آیا ہے مسجد میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس پائل کے ساتھ اس بچی کو اللہ قبول فرمائے اور اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جبرائیل آئے جھولا جھولائے لوری دی رحمان، سو جا رحمت عالم
बात तिलावत की है, इंशाअल्लाह उस पर बोलने की कोशिश करूँगा प्यारे आका की सीरत के बारे में। और मैंने हदीस भी उसी मौजू से पढ़ा है, लेकिन मेरी माँ और बहनें यहाँ पे काफ़ी तादाद में है। सारे जलसे में अगर बयान हो जाए और उनके मुतालिक शुरू में कुछ ना हो तो सोचती हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। गौर से सुनिए, बहुत खूबसूरत पैगाम आ रहा है। हारून रशीद एक बादशाह है। हारून रशीद बादशाह ने अपने एक वजीर को भेजा कि जाओ बाजार से बादियां खरीद कर लाओ, एक बादी खरीद कर लाओ। जब वजीर गया बाजार में तो उसने 2 बादियों को खरीद कर लाया। 2 बादियां। पुराने ज़माने में फुतवात होते थे तो जो औरतें गिरफ्तार होकर आती थी वो बादी होते थे। इस तरीके से खैर वो वजीर गया जब बाजार में तो उसने 2 बादियां खरीद कर लाया। मेरी माँ बहनें गौर से सुनिएगा, यह आपके लिए है। बादशाह ने कहा कि मैंने कहा था 1 बादी लाने के लिए, तुम 2 बादी लाए हो, लेकिन एक बादी का रंग काला था और दूसरे बादी का रंग गोरा था। एक बादी काली थी, दूसरी गोरी थी। बादशाह ने कहा वजीर से कि मैंने तुमसे कहा कि 1 बादी लाने के लिए, तुमने 2 बादी लाई, वो भी एक काली और एक गोरी। अभी ये बात चल ही रही थी तो जो गोरी वाली बादी जो थे, जो गोरी थे, वो बादशाह के सामने आगे बढ़े और वो कही, बादशाह आप मुझे अपने दरबार में रख लीजिए, क्योंकि काले को गोरे को काले पर फजीलत है और अल्लाह तबारक तआला ने मुझे फजीलत से नवाजा है। बादशाह ने कहा कि उसकी क्या वजह है कि मैं तुझे अपने दरबार में रख लूं? तेरे अंदर क्या खुसूसियत है, आखिर क्या फजीलत है, वजह क्या है? तो गोरी ने क्या कहा अपने लफ्जों में, उनके अंदर क्या तालीम थी, क्या तरबियत थी, क्या उनके पास ज़हन था, मेरी माँ और बहनों को बताना चाह रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी, मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर वाला। हुजूर, मोती सफेद है, सफेद होता है और वो लाखों में मिलता है, लाखों में, और कोयला 100 रुपये का इतना बड़ा गट्टर मिल जाएगा और आप आसानी के साथ जाके चूल्हा जला सकते हैं, उसकी कोई वक़्त नहीं है, इसीलिए मुझे रख लीजिए। तो काली जो थी सुन रही थी, काली, वो आगे बढ़ी और कही, बादशाह सलामत, मेरा नहीं सुनेंगे, मेरा सुनिए। काली ने कही कि है मुश्किल नाफा काली, कीमत में बेश आली, है मुश्किल नाफा काली, कीमत में बेश आली, और रोई सफेद है पैसों में ढेर गाली, रोई सफेद है पैसों में ढेर गाली। ए बादशाह सलामत, हिरन से एक मुश्क निकलता है, उस 70,000 और 90,000 रुपया तोला बिकता है, और वो मुश्क जो होता है वो काली मुश्क होती है। हिरन से जो मुश्क निकलता है उसका रंग काला होता है, और रुई जो है, रुई 100 रुपये में इतना बोरा मिल जाएगा कि इतना बड़ा लिहाफ मिल जाएगा कि मौलाना आजमत साहब के सारे बच्चे उसमें सो जाएंगे। समझ रहे हैं ना, इतना बड़ा लिहाफ बनेगा। तो बादशाह ने कहा कि बात तो तेरी भी ठीक है। तो गोरी आगे बढ़ी और कही, बादशाह सलामत, आप कुरान नहीं पढ़ते हैं? कुरान में अल्लाह ने कहा, यौम तबयज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जो जहन्नमी होंगे उनका चेहरा काला होगा और जो जन्नती होंगे उनका चेहरा गोरा होगा। तो गोरी आगे बढ़ी और कही, अल्लाह के नेक बंदों के मुँह सफेद होंगे, अल्लाह के नेक बंदों के मुँह सफेद होंगे, और दोज़खी जो होंगे मुँह उनके काले, और दोज़खी जो होंगे मुँह होंगे उनके काले। तो गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी, हुजूर, मेरा नहीं सुनेंगे? गोरी कहने लगी, आंखों की काली पुतले है नूर का वो चश्मा, आंखों की काली पुतले है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से ये खाली, और आंख की सफेदी है नूर से ये खाली। बादशाह का वजीर से, भाई मैंने तुमको बादी खरीदने के लिए भेजा था, यहाँ पे तो झगड़ा शुरू हो गया है। तो वजीर ने कहा, अभी झगड़ा चल रहा है, आगे रगड़ा चलेगा, अभी देखिएगा। हाँ, तो गोरी कहने लगी, हुजूर, आप कुरान नहीं देखते हैं, कुरान को देखिए, कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले, कागज सफेद है सब कुरान
काली आगे बढ़ी और कही उसमें जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले, उसमें जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। तो गोरी आगे बढ़ी और कहने लगे मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। मीलाद का जो दिन है, हमारे नबी जिस दिन पैदा हुए वो बड़ा मुनव्वर दिन था। मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो झट से गोरी काली आगे बढ़ी और कहने लगी मेराज की जो शब है काली है या नहीं है, मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। तो बादशाह ने कहा अरे वजीर वहां पर झगड़ा चल रहा था, यहाँ पे रगड़ा चल रहा है। गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी हुजूर बहुत हो गया, अब इंसाफ कीजिए। गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, कुछ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले। सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। तो काली आगे बढ़ी झट से और कहने लगी हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। मैं सोच रहा हूँ आप लोग इतना खामोश क्यों हैं, जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। खामोश रहते तो अच्छा नहीं लगता, बहारा के साथ ही बैठे थे लग रहा सब भगे। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब का नाम सुनने आए थे लग रहा। खाना चलिए देखिए गौरी आगे बढ़ने जरा उन वादियों को नावतों को मैं मुताबिक दिखला रहा हूँ, कितनी पढ़ी लिखी थी, कैसा उनके पास इल्म था, कैसा इल्म का खजाना था। और से सुनिएगा गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। तो काली आगे बढ़ी और कहने लगी हाँ सोचिएगा प्यारे है आप अक्ल वाले, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले। काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। अल्लाह अकबर। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ, गोरी कहने लगी हुजूर अब बहुत हो गया, इंसाफ कर दीजिए। अभी बादशाह ने इंसाफ किया नहीं था जब तक फिर से गोरी आगे बढ़ी और कहने लगी रुखे मुस्तफा है रोशन दांतों में है सफेदी, रुखे मुस्तफा है रोशन दांतों में है उजाला। जब तक काली आगे बढ़ी और कहने लगी जुल्फे उनकी काली कमली का रंग काला, जुल्फे उनकी काली कमली का रंग काला। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा अरे वज़ीर मैंने तुमको कहा था बाकी अल्लाह लाने के लिए, ये तो तुम किसी मदरसे का कुतुबखाना उठा कर लेकर आए हो। यूं तो लग रहा है कि ये तो मदरसे का कोई कुतुबखाना ही उठा कर लेकर आए हो। मैंने तुमको कहा था बाकी लाने के लिए, पूरा मदरसे का कुतुबखाना उठा के लेकर आए हो। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा वज़ीर से वज़ीर अगर ऐसी बादियाँ एक नहीं दो नहीं 100 भी बादियाँ मिले मार्केट में तो सबको उठा के लेकर आओ मेरे दरबार में। ऐसी बादियाँ बहुत काबिल की चीज़ है, हमारे दरबार में रहेंगे तो इंशाअल्लाह एक निज़ाम अच्छा निज़ाम कायम होगा। अल्लाह अकबर। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ और बहनें हाँ इस पर अमल करेंगी। मैं आपको बता रहा था मेरी माँ और बहनों के अंदर वो कमाल और वो जज्बा है कि अगर वो बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगी, अगर मेरी माएँ और बहनें नेक होंगी तो तारीख शाहिद है उसी माँ के बदन से अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा फरमाया है, उसी माँ के शिकन से अल्लाह ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को पैदा फरमाया है, उसी माँ के शिकन से अल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया है, उसी माँ के शिकन से अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया है। उन्हीं माँ के शिकन से अगर माँ की तरबियत अच्छी होती है, अगर माँ नेक होती है, उन्हीं की माँ के शिकन से अल्लाह गौस अब्दाल पीर वली अल्लाह ने पैदा फरमाया है। किसी ने कहा है माँ के शिकन से दुनिया भर में कैसे कैसे लाल हुए, गौस हुए अब्दाल हुए, गौस हुए अब्दाल हुए। माँ के कदमों को छूते ही कैसे माला माल हुए, सरदापा खुशहाल हुए, सरदापा खुशहाल हुए। माँ ने
छूटे, कभी तेरी माँ ना रूठे। नौजवानों, अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो उनकी कदर कर लीजिए। दारुल उलूम देवबंद के जो मुहतमिम थे हजरत हकीम इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके वालिद मोहतरम हजरत मौलाना अहमद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, कारी साहब रो रहे थे। देवबंद के लोगों ने कहा, कारी साहब आप इतने बड़े मुहतमिम हैं, इतने बड़े मदरसे के मुहतमिम हैं, आप रो रहे हैं। तो कारी साहब ने एक अजीब बात कहा। कारी साहब ने कहा, सुनो, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि हमारे अब्बू दुनिया से चले गए। माशाअल्लाह अब्बू तो नेक थे, इतने बड़े आलिम थे। और सुनो, इसलिए रो रहा हूँ कि आज के बाद से दुनिया के लोग कहेंगे मुहतमिम साहब, कारी साहब, मौलाना साहब, लेकिन दुनिया के लोग मेरा नाम लेकर पुकारना गवारा नहीं करेंगे। जो हमारे अब्बू मेरा नाम लेकर पुकारते थे, उस नाम में इतनी तासीर थी, इतनी मोहब्बत थी, इतनी दिलचस्पी थी, इतनी रौनक थी, इतना जमाल था, इतने खूबसूरत थे। और वो दुनिया में मुझे नहीं मिलने को मिलेगा। मेरे अब्बू कहते थे, तैयब इधर आओ। उस आवाज़ में जो तासीर थी वो तासीर कभी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। मेरी माँ और बहनों, आपको अल्लाह ने आपका मकाम और मर्तबा इतना बड़ा रखा है। अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किब्रा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। मैं पूरी तफसीर नहीं करता, सिर्फ इतना बता दूं कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं या उन दोनों में से कोई एक, फला तक़ुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ भी नहीं कहना, वला तनहरहुमा, और नहीं उनको झिड़क कर जवाब देना, व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे नरम लहजे में बात करना, नरम लहजे में बात करना। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवान साथियों, माँ कैसी होती है? एक किताब में एक वाकया लिखा है फिलिपाइन का। एक बिल्डिंग गिर गई, उस बिल्डिंग के नीचे बहुत सारे लोग दब गए थे, लाशें निकाली जा रही थे। उसी बिल्डिंग के नीचे एक चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक माँ उसी में दब गई थी, जिसके गोद में एक दूध पीता बच्चा था। लोगों ने निकालना चाहा, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे थे। एक हफ्ते के बाद जब उस चट्टान को उठाया गया, माँ बेहोश पड़ी थे और माँ के सीने पर दूध पीता बच्चा खेल रहा था, अपना अंगूठा चूस रहा था। सारे लोग देखकर ये हैरान थे, आखिर क्या बात है जिस मलबे के नीचे से कई हजार लोग मर गए, एक माँ बेहोश पड़ी है और एक दूध पीता बच्चा वो जिंदा है जो उसके गोद में खेल रहा है। बात क्या है? लोगों ने उस माँ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद से उसका दवा इलाज हुआ। उसके जिस्म में पानी खत्म हो गया था, खून भी नहीं था। एक हफ्ते के बाद उसको होश आया। होश आने के बाद से डॉक्टरों ने पूछा, अरे मेरी माँ जरा बताओ तो सही कि सारे लोग उसमें मर गए थे, कोई उसमें नहीं बचा, तुम बेहोश पड़े थे, तुम्हारा दूध पीता बच्चा कैसे खेल रहा था? तो माँ कहती है, सुनो, जब मलबा गिर गया मैं भी उसमें दब गए थे, लेकिन मलबा मेरे सर पर से थोड़ा सा ऊपर था, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ था। और मैं सोची मेरे थन में जो दूध था, मैं बच्चे को दूध पिलाती रही। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, थन से दूध भी खत्म हो गया, पानी वगैरह पीने का कुछ नहीं था। मैं सोची कि लग रहा मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मैंने एक तरकीब सोची, मैं सोची कि मैं दुनिया से चली जाऊं, ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा रहे, मेरा मासूम जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। उस माँ का किरदार देखिए, वो माँ अपनी काली उंगली को काटती है अपने दांत से और उसमें से खून निकलता है, उस खून को अपने बच्चे को पिलाती है। और दूसरा उंगली काटती है, उसमें से भी खून निकला, अपने बच्चे को पिलाना शुरू की। तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि हाथ के 10 उंगलियों को काट दी और 5 उंगलियों को काट कर उसका खून पिला दी। मेरा बेटा मासूम बच्चा जिंदा रहे, भले से मैं दुनिया से चली जाऊं, लेकिन मेरा बेटा जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। वो माँ थी, एक वो लोग थे, जाने क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं, जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए, बंदगी
इंशाअल्लाह फिर से गुफ्तगू आएगी, लेकिन मैं सीरत पर कुरान पाक की आयत पढ़ा हूँ और सीरत पर मैंने हदीस पढ़ा है। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ा, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मैं पूरी आयत की तफसीर करूँ तो रात छोटी पड़ जाएगी, हफ्ते कम पड़ जाएंगे, महीने कम पड़ जाएंगे, साल कम पड़ जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस आयत की तफसीर सारे मुफस्सिर ये कह के गए कि ला युमकिन सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादत खुदाए मतलब तो एक किस्सा मुख्तसर हमारे नबी के बारे में तफसीर खत्म हो न कभी नहीं हो सकती। सारी दुनिया लिख कर थक कर बैठे नबी की सीरत बयान करने के लिए और इस तफसीर को मुकम्मल लिखने के लिए, लेकिन सारे मुफस्सिर का कलम रुक गया जब नबी की बारी आ गई। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जरा गौर से सुनिएगा, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, हमने तेरा नाम बुलंद कर दिया, हमने तेरी शोहरत बुलंद कर दी। गौर से सुनिएगा, उलमा बैठे हैं। वरफ़अना, अल्लाह इसका माने कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। इसके लिए तो कुरान का यही लफ्ज़ काफ़ी था, वरफ़अना ज़िक्रक, वरफ़अना ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, इतना ही काफ़ी था। मैंने कहा मेरे अल्लाह इसमें लका लगानी थी क्या, क्यों गुंजाइश आ गई? मैं इस काम नहीं कर रहा, जुमले पे ध्यान दीजिए। अल्लाह तो ने इसमें लका लगाया, लका के माने तेरे लिए, तर्जुमा ये होगा, ऐ मेरे महबूब हमने तेरा जिक्र बुलंद किया तेरे लिए। ये इतना खूबसूरत जुमला है, इतना प्यारा लफ्ज़ है ये। कोई किसी के घर जाए मेहमान बनकर और जाकर मेजबान से कहे यार मैं तेरे घर आया तेरे लिए से, मेरा तेरे घर आने का मकसद खाना पीना नहीं, कोई सामान लेना देना नहीं, कोई पैसा वैसा लेना देना नहीं, यार मैं तेरे घर आया सिर्फ तेरे लिए। मैंने कहा मैं समझ गया मेरे अल्लाह तूने लका लगाया तेरे लिए। सुनो मैंने समझ गया। मैंने कहा अल्लाह ने कहा देखना, तो इस पे इश्कार करता है, अरे वो देख मैदान अरफात है, मेरे महबूब ने अमामा उतार कर जुल्फे खोल ली, चप्पलें उतार जूते उतार कर चप्पलें पहन लिए, कपड़े उतार कर चादरें ओढ़ ली, और इस हाल में अरफात के मैदान में वो मुझसे कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक। मैदान अरफात है, हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, इन्नल हम्दा वन निअमता लका, बेशक तारीफ और नेमत लका ए अल्लाह तेरे लिए है। मैंने कहा मैं समझ गया। इसने कहा सारी हम्दे तेरे लिए, तूने कहा सारी नाते तेरे लिए, तूने कहा सारी नाते तेरे लिए। इसने कहा मेरा रुकू तेरे लिए, तूने कहा मेरा दुरूद तेरे लिए। इसने कहा मेरा सजदा तेरे लिए, तूने कहा मेरा सलाम तेरे लिए, तूने कहा मेरा सलाम तेरे लिए। इसने कहा मेरा जिहाद, इसने कहा नबी ने कहा मेरा जिहाद तेरे लिए, और तूने कहा अल्लाह ने कहा मेरे मुजाहिद तेरे लिए। इसने कहा मेरी ज़ुबान तेरे लिए, तूने कहा मेरा कुरान तेरे लिए। इसने कहा मेरा प्यार तेरे लिए, तूने कहा सारा जहां तेरे लिए, तूने कहा सारा जहां तेरे लिए। तो आओ ना, ये नाचीज भी कहता है ये किसके लिए उसवे बल्कीस तसव्वुर, वाह ये किसके लिए उसवे बल्कीस तसव्वुर। ये गम दो रुखसार जहां तेरे लिए है, मक्का तेरे लिए, मदीना तेरे लिए, तौहीद का हर एक नगर तेरे लिए है। और रब ने किया तखलीक तो तुझे ही कह दिया सारा जहां तेरे लिए तो मेरे लिए है, सारा जहां तेरे लिए
تو میرے لیے ہے۔ تو آئیے ملک ہندوستان کے رہنے والا بہار کا ایک آدمی اپنے جذبات میں آ کر، نبی کے عشق میں آ کر چلا جاتا ہے، اپنے گھر بار کو نیلام کر دیتا ہے، مدرسوں میں دے دیتا ہے، مینارے کے لیے دے دیتا ہے، مسجد میں دے دیتا ہے، اکیلے ہے، اس کا کوئی نہیں، جانے لگا نبی کے عشق میں مدینہ۔ میں اس موضوع پہ پہنچ رہا ہوں، توجہ سے سنیے، ہمارے جو ساتھی یہاں پر کھڑے ہیں آپ سے گزارش ہے تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، نبی کی سیرت کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں، مجھے مناسب یہ رہے گا کہ آپ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام آ رہا ہے۔ کرسی لے کے سبھی لوگ بیٹھے، کرسی پہ آرام سے علیہ بیٹھے۔ ماشاءاللہ مہر الدین صاحب کی اہلیہ نے پھر سے اپنے